الیاس ستار صاحب اور سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں بتایا، ظالموں سن لو، کہاں تم نے یہ بیان کیا؟ اللہ اکبر! بیان یہ مسئلہ ہے، یہ خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لے لوگ کہ امت میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے کوئی ایک نبی بھی امت میں تشریف لایا اور لوگ بیٹھے رہیں، انتہائی قسم کی بے ادبی ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور یہاں مولوی عطار کو بیٹھا ہوا بتایا اور سرکار پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں بتایا، ظالم بتا یہ کفر ہے کیا نہیں ہے؟ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیا گھٹنے میں درد، گھٹنے پکڑ لیے تھے؟ اگر خواب گڑنا ہی تھا تو کم سے کم الیاس ستار کو کھڑا ہوتا ہوا بتانا تھا۔ اس قسم کے بہت سارے واہیات خواب، جھوٹے خواب گھڑ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ میرے سرکار پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الیاس ستار نے میٹھا کا لفظ استعمال کیا۔ تمام سنی مسلمانوں کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میٹھا انسان کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا منع ہے۔ اچھا خاصا کوئی آدمی ہو، وہ جا رہا ہو، اس کو کہیے اے میٹھے میاں ادھر آؤ، وہ جوتا لے کر مارے گا اور یہ کہے گا کہ مجھ کو میٹھا کہا۔ لغت میں، اردو ڈکشنری میں، غیاث اللغات میں، دوسری اور لغات میں، لغات کشوری میں میٹھا کا معنی لکھا ہے، زنخواہ کے معنی لکھا ہے، ٹھگ کے معنی لکھا ہے۔ میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کہہ کر تم نے در پردہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زنخواہ بتانے کی کوشش کی، جو کفر ہے، تم پر کفر واجب ہو گیا۔ اور ٹھگ کے معنی میں بھی آتا ہے، کون برداشت کرے گا؟ الیاس ستار، صرف سنتوں پر عمل کرنے کے نام پر یہ رونا دھونا تمہارا ڈھکوسلا ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ میں الیاس ستار کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی ماننے والے، بالخصوص یو پی میں ایک مشہور دارالعلوم جس کے بعض علماء الیاس ستار کی زر خریدی میں ملوث ہیں، زر خرید غلام بنے ہوئے ہیں، میں ان میٹھے علماء سے کہتا ہوں، وہ آئے علماء کرام جو الیاس ستار کے زر خرید ہیں، ذرا تم حکم شرع بیان کرو۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ اعظام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور دیگر متبرک پاک بندوں کو ایسا لفظ استعمال کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی آتے ہیں، جس میں بعض معنی یا ایک معنی تنقیص اور توہین کا آتا ہے، اس لفظ کو ان کی بارگاہ میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ ذرا تم خود بتاؤ، میٹھے علماء کرام جو بہت بڑے مدرسے کے الیاس ستار کے زر خرید غلام ہیں، اور وہ میٹھے علماء کرام بتائیں کہ لفظ میٹھا استعمال کرنا، لغت دیکھو، اگر معنی نہیں معلوم تو لغت دیکھو۔ جو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کو لفظ میٹھا استعمال کیا ہے، یہ صاف توہین ہے، صریح توہین ہے۔ میں بالکل بائیکاٹ کرتا ہوں۔ آج دسمبر 2020 کی پہلی تاریخ ہے۔ آپ پچھلے دنوں میں جب میں رد اور تردید کرتا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میں الیاس ستار کے نام کی تردید کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ یہ دھوکہ دیتا ہے وہ، آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ بہر صورت یہ ایک بہت بڑی بھیانک تنظیم ہے، اور لوگ آج تک جو ہے نا، جب سے
वहाबिया, देवबंदिया, गैर मुक़ल्लिदीन और दीगर फ़िरक़े बातिला का उरूज हुआ, उस वक्त आला हजरत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने रद्द व इब्ताल फरमाया। उस वक्त से लेकर आज तक मसलके आला हजरत इसी बुनियाद पर कहा जाता है, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल की बुनियाद पर मसलके आला हजरत कहा जाता है। आज तक इस इलियास अत्तार ने ना वहाबिया की तरदीद की, ना देवबंदिया की तरदीद की, ना गैर मुक़ल्लिदीन की। इलियास अत्तार साहब और सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़याम की हालत में बताया, ज़ालिमों सुन लो, कहाँ तुमने ये बयान किया। अल्लाहु अकबर। बयान ये मसला है, ये खूब अच्छी तरह से जहन में रख ले लोग कि उम्मत में चंद लोग बैठे हुए हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनमें से कोई एक नबी भी उम्मत में तशरीफ़ लाया और लोग बैठे रहें। इंतहाई किस्म की बेअदबी है, खड़ा होना फ़र्ज़ है, खड़ा होना फ़र्ज़ है। और यहाँ मौलवी अत्तार को बैठा हुआ बताया और सरकार पाक खातमुन नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़याम की हालत में बताया, जालिम बता ये कुफ्र है क्या नहीं है, खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्या घुटने में दर्द, घुटने पकड़ लिए थे, अगर ख्वाब गढ़ना ही था तो कम से कम इलियास अत्तार को खड़ा होता हुआ बताना था। इस किस्म के बहुत सारे वाहियात ख्वाब, झूठे ख्वाब घड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनक़ीस की गई है। यहाँ तक कि मेरे सरकार पाक खातमुन नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इलियास अत्तार ने मीठा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तमाम सुन्नी मुसलमानों को मैं आगाह करना चाहता हूं, मीठा इंसान के लिए मीठे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मना है। अच्छा खासा कोई आदमी हो, वो जा रहा हो, उसको कहिए ए मीठे मियाँ इधर आओ, जूता लेकर मारेगा और ये कहेगा कि मुझको मीठा कहा। लुग़त में, उर्दू डिक्शनरी में, ग़ियासुल लुग़ात में, दूसरी और लुग़ात में, लुग़ात किशोरी में मीठा का माना लिखा है, ज़नख़ा के माने लिखा है, ठग के माने लिखा है। मेरे सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा कहकर तुमने दरपर्दा मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़नख़ा बताने की कोशिश की, जो कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है, तुम पर कुफ्र वाजिब हो गया। और ठग के मानी में भी आता है, कौन बर्दाश्त करेगा। इलियास अत्तार, सिर्फ सुन्नतों पर अमल करने के नाम पर यह रोना धोना तुम्हारा ढकोसला है, ये सब ढकोसला है। मैं इलियास अत्तार के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मानने वाले हैं, बिलखुसूस यूपी में एक मशहूर दारुल उलूम, जिसके बाज़ उलमा इलियास अत्तार की ज़र खरीदी में मुलव्विस हैं, ज़र खरीद गुलाम बने हुए हैं। मैं उन मीठे उलमा से कहता हूँ, वो आए उलमाए किराम जो इलियास अत्तार के ज़र खरीद हैं, ज़रा तुम हुक्म शरा बयान करो। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइका इज़ाम अलैहिस्सलाम, साहबा किराम, औलिया इज़ाम और दीगर मुतबर्रक पाक बंदों को ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल की बारगाह में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके कई माने आते हैं, जिसमें बाज़ माने या एक माना तनक़ीस और तौहीन का आता है, उस लफ्ज़ को इनकी बारगाह में इस्तेमाल करना कैसा है, ज़रा तुम खुद बताओ। मीठे उलमाए किराम जो बहुत बड़े मदरसे के इलियास अत्तार के ज़र खरीद गुलाम हैं, और वो मीठे उलमाए किराम बताएं कि लफ्ज़ मीठा इस्तेमाल करना, लुग़त देखो, अगर माना नहीं मालूम तो लुग़त देखो। जो सरकार की बारगाह में सरकार को लफ्ज़ मीठा इस्तेमाल किया है, ये साफ तौहीन है, सरी तौहीन है। मैं
बिल्कुल बायकाट करता हूं। आज दिसंबर 2020 की पहली तारीख है। आप पिछले दिनों में जब मैं रद्द और तरदीद करता था, उस वक्त से लेकर आज तक मैं इलियास अत्तार के नाम की तरदीद करता हूं, करता रहूंगा। ये धोखा देता है वो, आप धोखे में ना आए। बहरे सूरत ये एक बहुत बड़ी भयानक तंजीम है, और लोग आज तक जो है ना, जब से वहाबिया, देवबंदिया, गैर मुक़ल्लिदीन और दीगर फ़िरक़े बातिला का उरूज हुआ, उस वक्त आला हजरत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने रद्द व इब्ताल फरमाया। उस वक्त से लेकर आज तक मसलके आला हजरत इसी बुनियाद पर कहा जाता है, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल की बुनियाद पर मसलके आला हजरत कहा जाता है। आज तक इस इलियास अत्तार ने ना वहाबिया की तरदीद की, ना देवबंदिया की तरदीद की, ना गैर मुक़ल्लिदीन की। तो क़यामत के रोज़ हर मुरीद अपने पीर के झंडे तले होगा। तो क़यामत अल्लाह ताला ने गौस पाक के सदक़े में मुझ पर करम फरमाया, तो सारे अत्तारी इंशाअल्लाह एक जगह जमा होंगे। मेरा सबसे बड़ा एतराज, ये उलमाए किराम शरीयत के मुहाफिज है, जानते हैं, और हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इन्हीं से मसला पूछता हूँ, मुफ्ती शाहबान अली साहब से। मुफ्ती शाहबान अली साहब नईमी से अब मैं इस मसला पूछ रहा हूं। मुफ्ती शाहबान अली साहब, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? उर्दू का कोई लफ्ज हो या किसी जबान का लफ्ज हो, उसके चंद माना आते हैं, और उन मानाओं में मुतरादिफ अल्फाज हैं। उन अल्फाज में एक लफ्ज या चंद अल्फाज तहकीर की तरफ दलालत करते हैं। उस लफ्ज को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इस्तेमाल करना कैसा है? देखिए जरा आप, जरा ये हुक्म शरा मैं इस वक्त मुस्तफ्ती हूं, एक आलिम दीन की बारगाह में इस्तिफ्ता तलब कर रहा हूं। आलिम दीन का हुक्म शरा है, अब वो हुक्म शरा बयान करें। क्या बात है कोई भी तहकीरी लफ्ज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इस्तेमाल करना सरीहन कुफ्र है। अगर फिर एक मर्तबा इरशाद फरमाएं। हेलो वो अल्फाज कि जो तहकीर की तरफ जाते हैं और तहकीरी माना रखते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए उनका इस्तेमाल सरीहन कुफ्र है। अगर वो शादीशुदा है, उसकी औरत उसके निकाह से निकल गई, अगर वो बैअत वाला है तो बैअत से वो खारिज हो गया। तहकीर का मतलब ये है वो ऐसा लफ्ज कि जिसमें इज्जत के माना ना हो बल्कि गैर इज्जत के माना हो। तहकीर किसे कहते हैं? इज्जत का लफ्ज उसमें ना हो, ताजीम का लफ्ज उसमें ना हो, बल्कि जिल्लत का लफ्ज हो। ऐसे लफ्ज सरकार की बारगाह में कतई कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। माशाअल्लाह, ये ले लिए। देखिए ये तो आपने मसला सुना, बताइए। आलिमे दीन का हुक्म शरा बयान करना, ये हुक्म शरा है। अब मैं इस पर बहस करना चाहता हूं। मुफ्ती शाहबान साहब किबला, उर्दू का एक लफ्ज है मीठा। उर्दू का एक लफ्ज है हजरत मीठा। मीठा अगर इंसान को फिरोज और लुगात में लिखा हुआ है, चंद माने लिखे हैं, और उसमें लिखा है
मर्द के लिए मीठे का लफ्ज इस्तेमाल करना धोखे के माने में आता है। यह बड़ा धोखेबाज है। जरा मीठा आदमी है, बचकर रहना। क्या बात है। और दूसरा माना हजरत लिखा हुआ है, और दूसरा माना लिखा हुआ है जी जी जी। अब दूसरा माना लिखा, एक तो माना हुआ धोखेबाज और मीठा ठग कहते ही है, और दूसरा माना लिखा हुआ है जो आदमी मर्द उसकी चाल चलन, उठना बैठना, गुफ्तगू का अंदाज जनाना आमेज है, जिसको जनखा कहते हैं, उसको जनखा लिखा है। बताइए मैं अपने नबी की बारगाह में लोग बर्दाश्त करूं? यह हो नहीं सकता। नहीं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादात इकराम। बताइए नबी की बारगाह में, नबी के बारगाह में मेरे सरकार को उन्होंने कितना मीठा 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 कहेगा। अरे मेरा तो ये कहना है, मेरे सरकार पाक हैं और ये खुद मीठे हैं। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब मीठे हैं, इलियास कादरी मीठे हैं, बम्बई के दावत इस्लामी मीठे हैं, और पूरे हिंदुस्तान की दावत इस्लामी वाले मीठे मीठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। गद्दारों पर, मक्कारों पर